हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री केटीएचएम कॉलेज नासिक। देखो, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एंड वेरी लास्टली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। चलिए तो फिर उसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं, टर्मिनोलॉजीज। Okay, I think we studied the 5 different terminologies. We will continue with the sixth one. Our sixth important terminology is the pathway of a pollutant. Pathway of pollutant. Pathway of pollutant. Okay, यहाँ पे नाम से ही पता चलता है, pathway का मतलब होता है mechanism. It is nothing but the way. It is nothing but the track by which they are distributed. So what will be the definition of a pathway? The mechanism by which the pollutant is distributed from the source to various region of environment is known as a pathway of that pollutant. The mechanism by which pollutant is distributed from source to various region of environment is known as pathway of that pollutant. Pathway of that pollutant. हर एक पोल्यूटेंट का अलग अलग पाथवे होता है, अलग अलग मैकेनिज्म होता है, अलग अलग वेज होते हैं जिससे वो पोल्यूटेंट सोर्स से वेरियस रीजन ऑफ एनवायरनमेंट तक रीच हो जाता है, पहुंच जाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मर्क्यूरी का एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल द पाथवे ऑफ मर्क्यूरी, पाथवे ऑफ मर्क्यूरी। आप यहाँ मर्क्यूरी का एग्जांपल ले सकते हो या लीड का एग्जांपल लेंगे। चलिए लीड का एग्जांपल डिस्कस करेंगे। पाथवे ऑफ लीड, वी नो दैट लीड इज प्रेजेंट इन गैसोलीन्स, दे आर प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल्स, इवन दे आर प्रेजेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ hydrocarbons, or you can say the fuels which we are used to run the vehicles. For example, lead as a tetraethyl derivative, tetraethyl lead, obviously they are present in gasolines. This tetraethyl lead from the gasoline undergoes a combustion. I will call it as an automobile combustion, and in that combustion the lead is liberated in the form of the halides, in the form of exhaust. So automobile exhaust in the form of gases, lead is comes out as a PbCl2, lead dichloride, PbBr2 or PbBrCl. Now they are released in air. So released in air. But we know that these are little bit heavy particles and therefore they can be settled down into the soil. So the after process of settling, this component goes into the soil plus PbBr soil. Now they are in soil. In soil, they are absorbed by the plants. Absorbed by plants. And obviously once they are absorbed by the plant, they goes into the food crops. And once this food crop is used as a food by various organisms, animals,
they enter into the food chain. They will enter into the food chain. In this way, the mercury present as a tetraalkyl lead in gasoline transfer to the food chain. Now this is the mechanism, this is the pathway by which the lead transfer or distribute from gasoline, that is the source, to the various region of the environment. So this is the one of the example. Okay, now if you want to note down it, नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए. हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म की तरफ. स्पेसिएशन. देखो यहां पे हर कोई पोल्यूटेंट की एलिमेंट से डिफाइन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है. जैसे कि लीड का एग्जांपल है हमारे पास, लेकिन ऐसा तो नहीं लीड कंटेनिंग एक ही पोल्यूटेंट है. लीड कंटेनिंग बहुत सारे पोल्यूटेंट्स है. वो सभी पोल्यूटेंट एक ही कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उसमें एक की एलिमेंट है लीड एंड विच शोज ए एडवर्स इफेक्ट. मेरे कहने का मतलब ये है ईच पोल्यूटेंट इज आइडेंटिफाइड बाय की एलिमेंट. जैसे कि मैंने अभी अभी लीड का एग्जांपल बताया, उसी तरह मर्क्यूरी का भी एग्जांपल हो सकता है. मर्क्यूरी डिफरेंट फॉर्म में, हम उसको केमिकल फॉर्म बोलेंगे, डिफरेंट केमिकल फॉर्मुलेशंस में एग्जिस्ट हो सकता है. ये जितने भी केमिकल फॉर्मुलेशंस होंगे, जितनी भी केमिकल स्पीसीज होगी, वो सब एक ही कैटेगरी में आएंगे. उसको हम बोलेंगे लीड पोल्यूटेंट्स. यानी कि जिसमें लीड की एलिमेंट है, ऐसे सभी पोल्यूटेंट्स को हम लीड पोल्यूटेंट्स बोलते हैं. मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों, यहां पे कोई अगर पॉइजनस या अफेक्टिंग एलिमेंट हो तो वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पोल्यूटेंट इन अ डिफरेंट केमिकल फॉर्म इज नोन एज अ स्पेसिएशन. स्पेसिएशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? द एग्जिस्टेंस ऑफ pollutant in different chemical form. इसको हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं. डिफरेंट केमिकल फॉर्म इज नोन एज स्पेसिएशन. फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी के एग्जाम्पल लेंगे. मर्क्यूरी कौन से केमिकल फॉर्म यानी कि स्टेट में एग्जिस्ट होता है? मर्क्यूरी कैन बी एग्जिस्ट एज Hg प्लस फॉर्म में हो सकता है. इट मे बी प्रेजेंट इन Hg0 ऑल्सो. इट मे बी प्रेजेंट एज HgCH3 प्लस मोनोमिथिल मर्क्यूरी. नेक्स्ट वन HgCH3 twice dimethyl mercury. Among these, now these are the speciations. Because this mercury exists in a different chemical form, these are the species of mercuries. All belong to the mercury pollutants. The speciation has a different toxic effect. यानी कि यहाँ पे Hg प्लस का टॉक्सिक इफेक्ट अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा. मेरे कहने का मतलब क्या है? डिफरेंट केमिकल फॉर्म हैज ए डिफरेंट टॉक्सिक इफेक्ट. डिफरेंट केमिकल फॉर्म हम अभी यहाँ पे उसको स्पीसीज बोल सकते हैं. स्पीसीज टू एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट स्पीसीज इज नोन एज अ स्पेसिएशन. Different chemical form means species has different toxic effect. Different toxic effect. जैसे कि यहाँ पे मर्क्यूरी का एग्जांपल है. In this case, the methyl mercury is a deadly poisonous. The methyl mercury is deadly poisonous, while others are less poisonous.
नाउ सच टाइप ऑफ बिहेवियर इज नोन एज अ स्पेसिएशन। आ गए समझ में? चलिए नोट कर लीजिए। Now the next term is a dissolved oxygen, which is a very important term. Dissolved oxygen, DO we call it as. I think 8. ये तो सिंपल है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट इन वाटर सैंपल इज नोन एज अ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। वाटर सैंपल में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना होता है, मीन्स ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड स्टेट कितना होता है। आपको तो मालूम है गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर and more particularly we are interested in carbon dioxide and oxygen gas, and among these two we are very eager towards the oxygen because the oxygen present in the water is a life of aquatic animals as well as aquatic plants. Okay, so what is meant by dissolved oxygen? The amount of oxygen present in a dissolved state, dissolved state बोलो या dissolved form बोलो, in water sample, in water sample is known as a dissolved oxygen, is known as a dissolved oxygen. The dissolved oxygen is expressed in terms of milligram of oxygen per liter. It is expressed as milligram of oxygen per liter. Milligram per liter इसका मतलब क्या होता है? ppm. We call it as a parts per million. milligram per liter का मतलब होता है ppm, parts per million. The optimum level of dissolved oxygen in an unpolluted water is 4 to 6 ppm. Unpolluted water. अनपोल्यूटेड वाटर में ऑक्सीजन कितना होता है? 4 to 6 ppm वाटर होता है, सॉरी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है, द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी। अगर किसी वाटर की क्वालिटी हमें एक्सप्रेस करनी है तो हमें उसका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एक्सप्रेस करना पड़ता है। इट मीन्स दैट इट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी। इट इज important water quality parameter, important water quality parameter। तो फिर आपके दिमाग में आ सकता है क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों ये वाटर क्वालिटी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है? क्योंकि अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इंडिकेट द लेवल ऑफ पोल्यूशन। ऑब्वियसली वंस द वाटर इज मोर पोल्यूटेड, during the decomposition or you can say the oxidation of organic matter, the oxygen gets consumed and its level gets decreased. It means that the decreased level indicate that the water is more polluted. मेरे कहने का मतलब ये है, the dissolved oxygen is consumed during the oxidation of organic matter. Dissolved oxygen is consumed during the oxidation of organic matter. Hence,
its level decreases, and therefore its level decreases. Now again one more question, why we need a dissolved oxygen? मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताया डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है. इट इज इंपॉर्टेंट और यू कैन से द एसेंशियल फॉर द एक्वाटिक लाइफ. जैसे कि एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टॉर्टॉइस और फिशेस, ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं. मराइन प्लांट्स होती हैं, वो मराइन प्लांट्स ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं. अगर ये लेवल ड्रॉप डाउन हो जाएगी तो ऑब्वियसली एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है. It means that it is essential for aquatic life. It is essential for aquatic life. चलिए नोट कर लो, हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म की तरफ. आई थिंक 9th. Chemical oxygen demand. It is also the amount of oxygen. Again, just like a dissolved oxygen हमने डिस्कस किया. लेकिन यहां पे कौन सा ऑक्सीजन मेजर करना है हमें? जो ऑक्सीडेशन करने के लिए यूज किया जाता है या यूज किया जाएगा, उसको हम बोलेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो फिर डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ केमिकली अवेलेबल ऑक्सीजन, the amount of chemically available oxygen required for the complete oxidation of organic matter present in the polluted water is known as a chemical oxygen demand. मैं यहां पे डेफिनेशन लिखता हूं, the amount of chemically available oxygen required for the complete, the amount of chemically available oxygen required for the complete oxidation of organic matter. Obviously oxidation organic matter का ही होता है. For the complete oxidation of organic matter present in polluted water is known as chemical oxygen demand. Chemically available oxygen required for the complete oxidation of organic matter is known as a chemical oxygen demand. Demand का मतलब होता है requirement. कितना ऑक्सीजन लगेगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए? ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा, उसको हम बोलेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. जाहिर है जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, जितना ऑक्सीजन लगेगा उसको हम बोलेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, यानी कि अगर पोल्यूटेंट ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा. इसका मतलब है मोर इज द पोल्यूटेड वाटर, मोर विल बी द COD. नेक्स्ट वन, मोर इज द पोल्यूटेड वाटर, हाइयर विल बी दी COD. तो फिर देख लो, जिसका COD ज्यादा है इसका मतलब ये ज्यादा पोल्यूटेड वाटर होता है. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर. जब हम वाटर क्वालिटी मेंशन करते हैं तो वहां पे हमें COD भी मेंशन करना पड़ता है, जैसे कि BOD के बारे में मैंने बताया. इट इज इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर. Next thing, how it is expressed? It is expressed as ppm of oxygen. ppm parts per million में ही एक्सप्रेस किया जाता है. It is
expressed as ppm of O2, कितना ppm वाटर लगेगा वो रहेगा उसका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आ गए समझ में? ओके, चलिए नोट कर लो इसको। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का परसेंटेज मेंशन करना है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करना है, लेकिन यहाँ पे हमें बायो डिग्रेडेशन करना है, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन करना है, इसलिए हम उसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलेंगे। तो फिर डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द बायोडिग्रेडेशन of organic matter present in the polluted water is known as biochemical oxygen demand. The amount of oxygen required for biodegradation of organic matter present in polluted water is known as BOD. Amount of oxygen required for the biodegradation of organic matter present in the polluted water is known as BOD. Just like a COD, BOD is also one of the important parameter of water quality. It is important water quality parameter. यानी कि जब किसी वाटर की क्वालिटी मेंशन करनी है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मेंशन करेंगे, COD मेंशन करेंगे, along with that we should mention है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड also. Next one, how to express? It is again expressed as ppm of O2, वही रहेगा, same way of expression as like a chemical oxygen demand. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये बायोडिग्रेडेशन कैसा किया जाता है? Now the polluted water is aerated and allowed to biodegrade by the added species बोलो या कल्चर बोलो, by the added culture of a microorganism. The polluted water is aerated and allowed to biodegrade by the added culture of a microorganism. यानी कि एरिएशन करना उसको, उसके बाद उसको उसमें कल्चर ऐड करना पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर का डिग्रेडेशन करेंगे। जब ये डिग्रेडेशन करेंगे तब ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया उसको हम बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया आपको बताना, ये 5 डेज के लिए अलाउड किया जाता है, विद इन अ पीरियड ऑफ 5 डेज। यहाँ पे लिखना है पोल्यूटेड वाटर within a period of 5 days is known as BOD। और सबसे इंपॉर्टेंट नहीं वही हो गई, जितना ज्यादा BOD होगा इसका मतलब है उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। इट मीन्स दैट हायर इज द वैल्यू ऑफ BOD, हायर इज द पोल्यूटेड वाटर। हायर इज द पोल्यूटेड वाटर। ओके, चलिए नोट कर लो इसको।
Now the next one. TLV. We called it as a threshold limit value. Threshold limit value, TLV. It indicates the permissible level of the pollutant to which a healthy person can be interact or can be stay for 8 hours of a day without affecting और विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट, यानी कि ऐसी लेवल कि जिस लेवल में अगर कोई हेल्दी पर्सन को या वर्कर को 8 आवर्स तक इंटरैक्ट किया यानी कि अलाउड किया तो कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि परमिसेबल लेवल बताता है, ये टॉलरेबल लेवल बताता है, जो टॉलरेट हो सकती है, जो एडजस्ट हो सकती है, जितनी लेवल होने से कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा अप टू द 8 आवर्स, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। तो फिर डेफिनेशन क्या होगी? इट इंडिकेट्स द परमिसिबल level of a pollutant to which healthy industrial worker can be exposed eight hours a day. Actually, these are the toxic pollutants. Toxic pollutants is known as TLV, threshold limit value. एक चीज लिखना भूल गया, विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। इज नोन एज अ TLV, यानी कि यह मिनिमम लेवल बताता है, टॉलरेबल लिमिट बताता है। ये बन गई आपकी नेक्स्ट टर्म। एंड अवर लास्ट टर्म इज अ रेसिडेंस टाइम। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, residence time. It is the time for which a chemical species stay in a region of environment without any adverse effect or without changing their chemical compositions, यानी कि इनर्टनेस बताता है। ये टाइम स्पैन है, टाइम ड्यूरेशन है। ऐसा नहीं किसी एनवायरमेंट में अगर कोई पोल्यूटेंट आ गया वो आते आते ही उसका एडवर्स इफेक्ट दिखाने लगेगा, ऐसा नहीं होता। वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए इनर्ट रहता है, कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखाता, और आफ्टर ए सर्टेन टाइम वी कॉल इट एज अ रेसिडेंस टाइम, इट विल शोज देयर एडवर्स इफेक्ट। ये जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं रेसिडेंस टाइम। तो फिर डेफिनेशन क्या होगी? द टाइम फॉर विच द केमिकल स्पीसीज, हम उसको पोल्यूटेंट्स भी बोल सकते हैं, केमिकल स्पीसीज और पोल्यूटेंट्स स्टे इन ए रीजन ऑफ एनवायरमेंट without undergoing any change in its chemical form.
विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इट्स केमिकल फॉर्म, केमिकल फॉर्म में कोई चेंज नहीं देखा था, यानी कि स्टेबल रहता है। और वो जितना टाइम किसी एनवायरनमेंट में स्टेबल रहता है उसको हम बोलते हैं रेसिडेंस टाइम। जैसे कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल N2O, द रेसिडेंस टाइम ऑफ अ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज 10 years। और अगर हमने NO2 का एग्जांपल लिया, द रेसिडेंस टाइम इज 3 day only। Once the NO2 comes in any environment or any region of the environment, it will remain inert, non-reactive for 3 days. Dinitrogen oxide can remain inert for 10 years। इसका मतलब ही है ये जल्दी रिएक्ट नहीं होता, inertness। In another word, I can say that residence time indicate in so friends, we will stop here। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।